Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we will do the part 2 of our unit 5 lesson 5.2 Rip Van Winkle. In our previous class we had done the part 1 in which I had explained you the chapter and I had told you what the chapter is all about. We had read the story and we had understood the story. So before we start the exercises, I will just go through the summary of the lesson once again. Okay? So let's see the summary. Rip Van Winkle was a good-natured man. Everyone liked him, but he was very lazy. So Rip Van Winkle was a nice man, he was a nice person, and everybody, they liked him very much. Okay, everyone, but he was very lazy. But there was one problem with him, and what was that problem? That he was very lazy. He did not like to do any work. His fields, in his fields, the fences were all breaking, but he was not, he did not mind it, and he did not took his kettles for grazing, you know. And he didn't like it at all. I mean, he was very lazy. He just wanted to do his idling away and nothing else. Once he went away into his hills, where he found some short and odd looking men. So he went to the jungle. वो जंगल में जाता है, and what he finds that there were people who were short of his height. They were not of his height, they were short, and they were looking very odd. They were looking very different. Okay, they were looking different, odd looking, unique, अलग लिख रहे थे वो लोग. One short old man gave Rip something to drink. और उसमें से एक आदमी ने क्या किया, उसे सब कुछ तो दिया पीने के लिए, ठीक है? And after that, Rip slowly fell into a deep sleep. और Rip जो है उसको पीने के बाद he went into a deep sleep. He slept. On waking up, he found that the wolf was he was at the same place where he had first met the old man. When he woke up, जब वो जागता है तो देखता है कि वो उसी जगह पे है जहाँ पे उसको पहली बार उस old man से मिला था, उसी जगह पर है. He looked around for his dog. तो वो अपने डॉग को देखता है, ढूंढता है, पर उसका डॉग उसे कहीं भी नहीं मिलता है. But he was nowhere. Then he began to descend the mountain to go back to his village. और उसके बाद फिर वो नीचे आने लगता है, अपने घर वापस जाने के लिए वो नीचे आने लगता है, ठीक है? When he reached near his village, और जब वो अपने विलेज के नज़दीक पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि वो किसी को भी पहचान नहीं रहा है. वो किसी को भी पहचान नहीं पा रहा है और कोई उसे भी नहीं पहचान पा रहे हैं. तो अपने ही गांव के लोग, गांव बहुत छोटी सी प्लेस होती है, हर कोई हर किसी को जानता है, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे लोग एक दूसरे को, लोग जो है रिप वैन विंकल को बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे, एज इफ उन्होंने कभी उसे देखा नहीं है. और रिप वैन विंकल भी उन्हें बहुत ही स्ट्रेंज नज़रों से देख रहा था, क्योंकि उसने भी उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, ऐसा उसे लग रहा था. Neither he knew about them nor they knew about him. Meanwhile, Rip touched his chin and realized that he has grown long beard. फिर उसने अपने चिन को जब टच किया तो देखता है कि उसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है, ठीक है? However, और तब एक औरत थी, ओल्ड वुमन, उसने उसे पहचाना, recognized him and asked him where he had been for these 20 years. और वो लेडी जो है वो उससे क्या पूछती है कि वो इन 20 सालों में कहाँ था. यानी कि रिप वैन विंकल जो है वो 20 years तक सोता रह गया और जागने के बाद उसे बहुत ही, ये तो इतनी ही स्टोरी है, लेकिन रिप वैन विंकल की स्टोरी लॉन्ग है, और उस लॉन्ग स्टोरी में हम देखेंगे कि उसे बहुत अफसोस हुआ, कि जागने के बाद उसे बहुत अफसोस हुआ दैट ही हैज़ वेस्टेड हिज 20 years स्लीपिंग. सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? थीम हमने उस दिन भी डिस्कस की थी, और ये थीम थी कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. टाइम और टाइड किसी के लिए भी इंतज़ार नहीं करते हैं. हमें समय का कभी भी अच्छे से अच्छा यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है, इट नेवर कम्स बैक अगेन. सो वी शुड यूटिलाइज द टाइम more and more and in a very useful manner. Okay, so this is what the whole story was. Now we will see the question answers of the story. Before that we will see the word meanings. Word meanings थोड़ा सा different तरीके से है, जो कि हमारे NCERT के
एनसीईआरटी के बुक में है, ठीक है, तो हमने ऐसे ही लिया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि आइडियल है, सो देयर आर 3 मीनिंग्स एंड वी हैव टू सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियल। ओके, सो आइडियल का करेक्ट मीनिंग, यहाँ पे 3 मीनिंग्स है, एक है अवे, एक है अवे, एक है वेस्टेड, रेस्टेड, एडमायर्ड। सो व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियल? आइडियल मतलब क्या? अपना टाइम को वेस्ट करना, ठीक है, सो इट विल बी वेस्टेड। आइडियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल? वेस्टेड, यानी बर्बाद कर देना। आइडियल अवे यानी वेस्टिंग द टाइम इन डूइंग नथिंग। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कॉफी, कॉफी तो नहीं होता है। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट भी नहीं होता है। स्टेडी, हाँ स्टेडी होता है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब क्या? निरंतर, लगातार, और स्टेडी का मतलब भी वही होता है, लगातार, निरंतर। ओके, नेक्स्ट इज कंपेनियन। तो डॉग, डॉग वॉज द कंपेनियन ऑफ रिप वैन विंकल, लेकिन यहाँ पे मीनिंग तो नहीं है ना, ही वॉज द कंपेनियन नॉट द मीनिंग। ओके, स्ट्रेंजर या फिर पार्टनर, तो यस कंपेनियन का मतलब होता है साथी, पार्टनर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रियलाइज। रियलाइज मतलब क्या? किसी भी चीज को रियलाइज करने का मतलब क्या होता है? उसको जानना, ठीक है। तो रियलाइज मीन्स टू अंडरस्टैंड। इट डज नॉट मीन टू सेट फ्री एंड इट डज नॉट मीन रियल। डिसेंड, मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उसका मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े से छोटा। तो डिसेंड मतलब क्या? किसी भी चीज़ का नीचे आना, छोटा होता जाना, वो उसको बोलते हैं डिसेंड। नॉट टू सेंड नहीं होता है। टू बी डिसेंट ये भी नहीं होता है। क्या होता है? टू मूव डाउन, टू मूव डाउन, नीचे की तरफ बढ़ने को बोलते हैं डिसेंड। नेक्स्ट इज बैरल। बैरल मैंने लेसन पढ़ाया था, उस समय भी बताया था, इट मीन्स अ सिलिंड्रिकल वेसल। तो अ वुडन कंटेनर, एक वुडन कंटेनर होता है, हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं होता है, और ना ही ये बैग होता है। ओके, सो बैरल मीन्स अ वुडन कंटेनर। नेक्स्ट इज कंटेंट्स। कंटेंट्स मीन्स, कंटेंट्स का मतलब क्या होता है? कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फाइड, तो टू बी हैप्पी नहीं होगा। कंटेंट सिर्फ इतना, इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड। हाँ, सेटिस्फाइड मतलब हम इनफ, मोर देन इनफ होता है जब हम उसको बोलते हैं कंटेंट, लेकिन यहाँ क्या है? इट्स कंटेंट्स। तो कंटेंट्स जो है ये क्या होगा? द इंग्रेडिएंट्स। कंटेंट्स का मतलब क्या? चीजें, कंटेंट्स, ठीक है। तो इसका यहाँ पे मतलब क्या होगा? कंटेंट्स। और इंडेक्स ऑफ द बुक ये नहीं होता है, कंटेंट्स होता है, इंडेक्स ऑफ द बुक नहीं, ठीक है, कंटेंट होता है वो भी। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट मीनिंग होगी वो क्या होगी? इंग्रेडिएंट्स यानी चीज़ें, कंटेंट्स। ओके, सो दिस वाज द वर्ड मीनिंग्स। अब हम नेक्स्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बुक के अंदर से लिए हैं, फ्रॉम इनसाइड द टेक्स्ट। I have made the questions myself and I have also done the answers for it, so that you understand the lesson very nicely. Next, first question is, where did Rip Van Winkle lived? Okay, never write, यहाँ पे W देखो, W जो है ना वो स्मॉल लेटर से लिखा है, लेकिन कभी भी जो प्रॉपर नेम्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से नहीं लिखा जाता है। इवन द फर्स्ट में नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, तीनों को ही हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जितने भी नेम्स होंगे दे विल बी रिटन विद द कैपिटल लेटर। ओके, सो वेयर डिड रिप वैन विंकल लिव्ड? तो रिप वैन विंकल, दिस इज अ टाइपिंग एरर। ओके, this should be capital letter. Rip Van Winkle lived in a little village which was at the foothills of the Catskill Mountain. तो कहाँ पे था रिप वैन विंकल का घर? रिप वैन विंकल जहाँ रहता था वो एक छोटी सी विलेज, अ लिटिल विलेज, जो फुट हिल्स पे थी, कैट्सकिल माउंटेन के फुट हिल्स पे, ठीक है। कैट्सकिल माउंटेन का जो वैलीज है उसमें थी। इट वॉज एट द फुट हिल्स, उसके फुट में। What kind of man was Rip Van Winkle? तो किस तरह का आदमी था रिप वैन विंकल?
Rip Van Winkle was a simple, good-natured fellow man who was always ready to help anyone. तो ही वॉज अ सिंपल बहुत ही साधारण सा आदमी, अच्छे नेचर का आदमी जो किसी को भी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता था. ठीक है, किसी को भी हमेशा वो हेल्प करने के लिए तैयार रहता था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउट व्हेनेवर दे सॉ हिम? तो जो बच्चे थे वो हमेशा उसको देख के क्यों शाउट करते थे, खुशी से एकदम चिल्लाने लगते थे. बच्चे क्यों चिल्लाने लगते थे? द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड व्हेनेवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम. क्यों? क्योंकि वो उनके साथ खेलता था. ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स, और उन्हें वो काइट्स उड़ाना सिखाता था, और शूट मार्बल्स, और कंचे को शॉट करना भी सिखाता था. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और लंबी लंबी कहानियां सुनाता था. तो बच्चों को और क्या चाहिए? इतना काफ़ी है. कंचे खेलना सिखा रहा है, काइट्स फ्लाई करना सिखा रहा है, और उन्हें क्या कर रहा है, और उनके साथ खेल रहा है. और क्या चाहिए? इसीलिए जब भी देखते थे तो खूब खुश हो जाते थे, और खूब खुश होकर उसको चिल्लाने लगते थे. सो दे यूज्ड टू शाउट सीइंग हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What was his only problem? उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, और वो क्या प्रॉब्लम थी? His only problem was that he was very lazy. तो एक ही प्रॉब्लम थी, और वो क्या थी? कि वो बहुत ही लेजी था, बहुत ज़्यादा लेजी था. ठीक है. Where did he reach one day? एक दिन वो कहाँ पहुँच गया? तो one day he reached the highest part of the mountain. वो कहाँ पहुँच गया? सबसे हाईएस्ट पार्ट, माउंटेन के सबसे हाईएस्ट पार्ट में पहुंच गया. ठीक है, ही रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू आफ्टर अ लॉन्ग क्लाइंब? तो जब हाईएस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन में पहुंचा है तो उसके लिए वो चढ़ा भी होगा उतनी दूर, तभी ना पहुंचा है. तो व्हाट डिड ही डू आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब? उतना लंबा चढ़ने के बाद उसने क्या किया? आफ्टर लॉन्ग क्लाइंब ही लेड डाउन एंड बिगैन डे ड्रीमिंग. तो उसने क्या शुरू कर दिया? उतनी लंबी चढ़ाई करने के बाद वहाँ पे लेट गया, ले डाउन, और दिन में ही सपने देखने लगा. What did Rip Van Winkle see when he looked around? Okay? So जब उसने देखा तो उसने क्या देखा? हाँ, looked की स्पेलिंग को मैं पूरा अच्छे से ठीक कर देती हूँ. It's L-O-O-K-E-D. Looked. What did Rip Van Winkle see when he looked around? जब उसने चारों तरफ देखा तो उसने क्या देखा? Rip Van Winkle saw a short old man with thick hair. एक short old man को देखा जिसके hairs कैसे थे? thick थे, and a grizzled beard. और उसकी जो beard थी, वो beard थी, दाढ़ी थी, वो कैसी थी? ग्रे कलर की हो गई थी. वॉकिंग टूवर्ड्स हिम, और वो उसकी तरफ आ रहा था एक बैरल के साथ, एक वुडन कंटेनर के साथ, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर के साथ. व्हेन ही लुक्ड अराउंड, जब उसने उस चारों तरफ देखा तो उसने देखा एक शॉर्ट आदमी है जो एक बैरल के साथ उसकी तरफ आ रहा है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एस्टोनिश्ड रिप वैन विंकल? रिप वैन विंकल को क्या चीज़ देख के बहुत अजीब लगा? वो बहुत ही एस्टोनिश्ड हो गया. किस चीज़ को देख करके? तो द आंसर इज व्हेन रिप वैन स्ट्रोक्ड हिज चिन. तो व्हेन रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन, अपनी चिन को जब उसने ऐसे सहलाया तो वो देखता है कि उसकी लंबी लंबी दाढ़ी है. ही फाउंड हिज बेड हैड ग्रोन अ फुट. उसकी बेड जो है वो 1 फुट बढ़ गई है. ठीक है. एंड इट वॉज ऑल वाइट, और वो सारी कैसी हो गई है? वाइट कलर की हो गई है. ठीक है. दिस इंसिडेंट एस्टोनिश्ड रिप वैन विंकल. और इस इंसिडेंट से वो क्या हो गया? बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, बहुत ही एस्टोनिश्ड था कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंड दैट इज मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स with their meanings. You may take the help of a dictionary. तो there are few words given, जैसे कि grizzled है, हाँ,
एस्टॉनिश्ड है, फुटहिल्स है, स्ट्रोक्ड है और फेमिलियर है। हमने कुछ स्पेलिंग्स उस समय की थी, मीनिंग्स, है ना। अब ये एक और कुछ मीनिंग्स हैं इसमें, तो यहाँ क्या है, मीनिंग लिखे हुए हैं, यू हैव टू फाइंड व्हाट इट मीन्स, यू हैव टू फाइंड द वर्ड्स, ओके। सो नियर द लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन, जो लोअर पार्ट होता है माउंटेन का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फुट हिल। क्या बोलते हैं, फुट हिल्स, ओके। विथ ग्रे हेयर, ग्रे हेयर जब होती है, बाल जब ग्रे हो जाते हैं, थोड़े वाइट थोड़े सफेद, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रिजल्ड, ग्रिजल्ड, ओके। टू रब जेंटली, धीरे धीरे रब करने को, सहलाने को, धीरे धीरे ऐसे रब करने को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक्ड। क्या बोलते हैं, STROKED, स्ट्रोक्ड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टू बी वेरी सरप्राइज्ड, बहुत आश्चर्यचकित हो जाने को क्या बोलते हैं, एस्टॉनिश्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नोन टू यू, जो चीज के बारे में हम जानते हैं, जिससे हम वाकिफ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फेमिलियर। क्या बोलते हैं, फेमिलियर। Okay, so these are the meanings and these are the words. We had to match them and we did that. Okay, so what are the words? Foothills, grizzled, stroked, astonished and familiar. Okay, near the lower part of a mountain, foothill, with grey hair, grizzled, to rub gently, stroked, to be very surprised, astonished, and known to you is familiar. Okay. Now we will see the next question. Next question क्या है, देखते हैं जरा। अच्छा, true false है, we have to write true and false for the statements. तो पहला statement क्या है, Rip was kind to children. Correct है, हाँ correct है ना, हाँ, he was very kind to children. Children used to love him. So this statement is true. Next है Rip was a hard working man. Rip जो था वो कैसा आदमी था, हाँ, हार्ड वर्किंग मैन था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसा लग रहा है, अगर हार्ड वर्किंग मैन होता तो ये स्टोरी ही नहीं बनती, है ना। तो ये क्या होगा, फॉल्स। ओके, द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। जो शॉर्ट ओल्ड मैन था वो हमेशा रिप के साथ रहता था, हाँ, नहीं ना रहता था कि रहता था, नहीं रहता था। वुल्फ जो था, डॉग, वो उसका क्या था, कांस्टेंट कंपेनियन था। ठीक है, डॉग जो थी वुल्फ, वो उसका कांस्टेंट कंपेनियन था, ना कि शॉर्ट मैन। तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, फॉल्स है। ओके, और ये है उसका कांस्टेंट कंपेनियन, डॉग, वुल्फ। नेक्स्ट है, रिप हेल्प द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव अ ड्रिंक फ्रॉम द बैरल। रिप ने उसकी हेल्प इसलिए की थी क्योंकि वो ड्रिंक पीना चाहता था बैरल के अंदर से? नहीं, ऐसा नहीं था। रिप वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, इसीलिए उसने हेल्प की थी। वो इसलिए उसने हेल्प नहीं की थी कि उसको उसके अंदर का ड्रिंक जो है वो पीना था। ठीक है, रिप वॉज अवे फॉर 20 years बिकॉज ही वॉज अस्लीप ऑन द माउंटेन्स। तो रिप 20 साल तक दूर था, क्यों? क्योंकि वो माउंटेन्स में जाके सो गया था। हाँ, सो गया था ना, कि नहीं सोया था? सो गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वो ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट है, द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल asleep for 20 years। क्या वो जो ड्रिंक थी उसकी वजह से वो सो गया था? ऐसा तो है नहीं, बट यस, उस ड्रिंक को पीने के बाद ही वो सो गया था, इसलिए वी कैन से इट्स ट्रू। Nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village। कोई भी रिप को पहचान नहीं पाया, क्यों? क्योंकि गलत जगह में चला गया था। वो क्या,
गलत विलेज में चला गया था? नहीं, गलत विलेज में नहीं गया था, वो 20 साल तक गायब था, इसीलिए वो नहीं पहचान पा रहे थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो गलत है, वो सही विलेज में ही था। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट है complete the following sentences. So it has already been completed. You just see, you have a check of it. Rip's village was situated at the foothills of Catskill Mountain. Yes, it was situated at the foothills of Catskill Mountain. The children of the village loved him because बच्चे जो थे वो उसको बहुत प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि he played with them, he taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. Okay, that's why they loved him. Okay, next is a dog named Dash Wolf was his constant companion. तो कौन था उसका constant companion? A dog named Wolf. एक dog जिसका नाम क्या था? Wolf था, वो उसका constant companion था। The villagers stared at him because they could not recognize him. Villagers जो थे वो उसको stare क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाए थे, है ना? They could not recognize him. The old woman was recognized, who recognized Rip was his neighbor. तो जो old woman थी जिसने उसको पहचान लिया था वो कौन थी? उसकी neighbor थी, हाँ? Yes, she was his neighbor. Okay, so this is the complete the following statement. Now the next question, what were the strange things about the men on the mountains? जो mountains पे men मिले थे रिप वैन विंकल को, उनके बारे में strange चीज क्या थी? अजीब बात क्या थी उनके बारे में? उनके बारे में अजीब बात ये थी कि they were all dressed in the same way. वो सभी का ड्रेस कैसा था? एक जैसा था, एक जैसे ड्रेस पहने हुए थे सबने। All of them had beards of various shapes and colors. और सबकी दाढ़ी थी, ठीक है, और सबकी दाढ़ी कैसी थी? अलग अलग शेप्स की थी, अलग अलग कलर्स की थी, कलरफुल दाढ़ियाँ थी उनकी, ठीक है। Their faces were serious. हाँ, ये पॉइंट जो है इसको देखो, Their faces were serious, यानी उनका फेस कैसा था? एकदम सीरियस था। जब हम खेलते हैं तो हम कैसे होते हैं? बहुत एक्साइटेड होते हैं, हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं, है ना? लेकिन वो कैसे खेल रहे थे? एकदम साइलेंटली खेल रहे थे, उनकी फेस एकदम सीरियस थी। और जो सिर्फ आवाज़ आ रही थी वहाँ पे खेलने के समय में, वो किसकी आवाज़ थी? वो आवाज़ जो आ रही थी वो सिर्फ वो 9 पिन्स की आवाज़ आ रही थी। जो 9 पिन्स को वो हिट कर रहे थे बॉल से, उन्हीं की आवाज़ आ रही थी और किसी की भी आवाज़ नहीं थी, बिकॉज दे वर प्लेइंग वेरी साइलेंटली। चेस का गेम भी इतना साइलेंट कोई नहीं खेलता है, इतने साइलेंटली वो खेल रहे थे। दे वर टोटली साइलेंट। तो व्हाट आर द 4 थिंग्स? 4 थिंग्स आर, they were all dressed in the same way, all of them had beards of various shapes and colors, their faces were serious, and they were totally silent. Okay, so these were the 4 things that he could see. Now the next question is, what kind of man was Rip Van Winkle? Rip Van Winkle जो है वो कैसा आदमी था? तो कैसा आदमी था वो? He was a kind neighbor. बहुत ही अच्छा नेबर था, बहुत ही दयालु नेबर था। He was ready to help anyone. और किसी की भी हेल्प करने के लिए वो हमेशा रेडी रहता था। जैसे कि उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बड़ा सा बैरल लेके माउंटेन्स पे चढ़ रहा है, तो वो उसके साथ उसको चढ़ाने में चल दिया, ठीक है, चढ़ाने में हेल्प करने के लिए चल दिया। He played with children and told them long stories. और क्या करता था वो? बच्चों के साथ खेलता था, बच्चों को लंबी लंबी कहानियाँ सुनाता था, ठीक है। He was very lazy. और क्या था? बहुत ही लेजी था। ये उसकी एक माइनस पॉइंट थी। और सब क्या है? उसकी प्लस पॉइंट है 3, ठीक है। He was a kind neighbor. He was ready to help anyone. He played with the children and told them long stories. And he was very lazy. Okay, these are the 4 things. 3 of them जो है उसकी पॉजिटिव है और एक जो है वो उसका नेगेटिव है। Now
पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। तो यहाँ पे स्टोरी में कुछ नेम्स दिए हुए हैं, गेम्स के नेम दिए हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ देख सकते हो गेम्स के नेम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी गेम्स के नेम दिए हैं जो स्टोरी में नहीं है। हमें किनको पिक करना है? ओनली उन्हें पिक करना है जो स्टोरी में है। तो फ्लाइंग काइट्स है, यस, फ्लाइंग काइट्स जो है वो है। उसके बाद चेस मेंशन्ड है, नहीं, चेस मेंशन्ड नहीं है। नाइन पिन्स है, चेस तो नहीं है तो क्रॉस करना चाहिए, मैंने टिक कर दिया। शूटिंग मार्बल्स, यस, शूटिंग मार्बल्स, ये सिखाता था बच्चों को, फ्लाइंग काइट्स और शूटिंग मार्बल्स। माउंटेन क्लाइंबिंग है, यस, माउंटेन क्लाइंबिंग है। शूटिंग नहीं है ना, नो। स्किपिंग, ये भी नहीं है, और हॉपिंग, ये भी नहीं है। सो व्हाट आर द गेम्स that are there mentioned in the story? Flying kites, nine pins. Do you know what is nine pins? ऐसे सिलिंड्रिकल बॉल्स जैसी होती हैं, 9 रखी होती हैं, और एक बड़ा सा बॉल होता है, उसको दूर से मारना होता है और सारे 9 पिन्स को क्या करना पड़ता है? गिरा देना होता है, ठीक है। देन शूटिंग मार्बल्स, एंड माउंटेन क्लाइंबिंग। और क्या है? माउंटेन climbing, okay, so these are the names of the games that are mentioned in the story, okay. Sometimes we join two words to make a describing word. For example, Rip was a good natured man. तो good और natured ये 2 words है, इसको मिला के क्या बना है? एक वर्ड बना है, और वो क्या कर रहा है? वो रिप वैन विंकल को डिस्क्राइब कर रहा है। गुड नेचर्ड मैन, एवरीबडी लाइक्ड हिम, ठीक है। तो यहाँ पे हियर आर सम मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आगे के स्लाइड में हम देखेंगे कि कुछ और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है वो दिए हुए हैं। हमें क्या करना है? वी हैव टू यूज देम टू कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ। हमें उनको यूज करना है और पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, ओके। तो लेट्स सी व्हाट आर दीज वर्ड्स। अब देखो, लॉन्ग स्लीव्ड मतलब क्या होता है? जो लंबी बाजू वाले कपड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्ग स्लीव्ड। हाई हील्ड होती हैं, जो ऊंची एड़ी वाली सैंडल्स होती हैं ना, जो लेडीज पहनती हैं, चाहे लड़कियां पहनती हैं, बड़ी बड़ी ऊंची सैंडल्स, उसको बोलते हैं हाई हील्स। वेल ड्रेस्ड यानी जो अच्छे से कपड़े पहनते हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन, उनको बोलते हैं वेल ड्रेस्ड। उसके बाद ओपन माउथ, ऐसे करके जो मुंह खोल के किसी चीज को देखते हैं उसको क्या कहते हैं? ओपन माउथ। स्वीट लुकिंग, प्यारा सा चेहरा होता है जिस किसी का, बहुत ही स्वीट लुकिंग बोले तो बहुत ही प्यारा सा होता है, उसको बोलते हैं स्वीट लुकिंग। उसके बाद ऑड लुकिंग, यहाँ पे ट्रिपल डी नहीं है, देयर इज ओनली 2 डीज। ऑड लुकिंग यानी थोड़ा अजीब दिखने वाला, अच्छा या बुरा नहीं, अजीब दिखने वाली चीज़ों को बोलते हैं ऑड लुकिंग। पार्ट टाइम का मतलब है कि पूरे फुल टाइम के लिए नहीं, पूरे समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए, ठीक है। पार्ट टाइम मतलब क्या? थोड़े समय के लिए। तो अब हम इसको देखते हैं कहाँ पे कौन से वर्ड्स यूज होंगे। मिसेस दास हैज़ अ डैश जॉब इन क्लोथ्स शॉप। तो मिसेस दास का कैसा जॉब था? पार्ट टाइम जॉब था, मतलब फुल टाइम नहीं करती थी वो, पार्ट टाइम जॉब था। पार्ट टाइम जॉब इन अ क्लोथ्स शॉप। Yesterday and dash women walked into the shop. तो कैसी woman? Sweet looking woman. We can write sweet looking woman. Sweet looking woman walked into the shop. She was wearing high heel
शूज, और उनकी हील शूज कैसी थी, उसकी हील्स जो थी वो बहुत ही हाई थी, हाई हील्ड शूज. अ डैश लुकिंग डॉग वॉज विथ हर. दिस विल बी ओल्ड लुकिंग लेडी होगा, ओल्ड लुकिंग लेडी, और लुकिंग नहीं. और यहाँ पे जो है दिस विल बी ओल्ड लुकिंग लेडी. ओके, ओल्ड लुकिंग लेडी यानी कि बूढ़ी औरत जो होती है उसको ओल्ड लुकिंग बोलेंगे. और डॉग को हम बोलेंगे स्वीट लुकिंग डॉग. ओके, स्वीट लुकिंग डॉग. नेक्स्ट slide, let's see the next slide. तो ये तो सेम ही है. A sweet looking dog was with her. I want a long sleeved shirt. कैसा शर्ट चाहिए उसे, लंबी बाजू का शर्ट चाहिए, लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट फॉर माई डॉग. किसके लिए, डॉग के लिए. शी सेड फॉर योर डॉग, आस्क्ड मिसेस दास. तो फॉर योर डॉग, मिसेस दास ने पूछा कि लोग तो बच्चों के लिए कपड़े खरीदने आते हैं, अपने लिए कपड़े खरीदने आते हैं, वो डॉग के लिए कपड़े खरीदने लगी है, आई है. तो वो कैसे देखती हैं, पूछती हैं, ओपन माउथ, मुंह खोल के पूछती हैं, ओपन माउथ. आस्क्ड मिसेस दास, ओपन माउथ इन सरप्राइज. यस, रिप्लाइड द वुमन, आई वांट हिम टू बी वेल ड्रेस्ड. कैसे, well dressed for my party. Okay, she wanted her dog to be her dog to be well dressed for the party. That's why. Okay, so this is the fill in the blanks. Now we will discuss some vocabulary, some letters. तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें जो कुछ लेटर्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं, जैसे कि KNEE. How will we pronounce it? We will pronounce it knee. हम K नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ क्या बोलते हैं, we just say knee, है ना. तो knee, KNIFE, क्या हो गया, K को साइलेंट रख के बोलते हैं नाइफ, NIFE ही से प्रोनाउंस करते हैं. ओके, उसके बाद KNOT, नॉट. KNOW, no. Can you write one more word with K like this? Huh? We can write KNOW, knowledge, है ना, LE. So knowledge. Okay. So यहाँ पे next है NEIGHBOUR, neighbor. Okay. DAUGHTER, daughter. FIGHT, fight. STRAIGHT, straight. तो यहाँ पे हम क्या नहीं बोल रहे हैं, नेबर. GH को हम लोग साइलेंट रखा है. ठीक है, तो एक और ऐसा वर्ड हम इसमें जोड़ सकते हैं, एंड दैट वुड बी व्हाट, राइट, है ना. नाउ नेक्स्ट इज ऑनर, ऑनेस्ट, है ना, HONEST, ऑनेस्ट, ऑनर. हाँ, आर एयर. हाँ, और फिर एक और हम क्या लिख सकते हैं, ऑनरेबल. वी कैन राइट ऑनरेबल. ओके, सो दीज वर्ड्स जो है, दीज वर्ड्स आर, इसमें K इज साइलेंट, इसमें G इज साइलेंट, GH इज साइलेंट, इसमें H इज साइलेंट. ठीक है. कुछ और लेटर्स हैं ऐसे, जैसे कि GNAT. इसमें क्या होता है, इसमें GNAT, नैट, नैट, इसमें G साइलेंट होता है. रॉ, GRAW लिखा है, बट वी विल प्रोनाउंस इट रॉ. रू, GRU, रू, तो G नहीं बोला जाता है उसमें. ठीक है. नौ. ठीक है. नेक्स्ट इज टंग. टंग
तो उसमें हम क्या नहीं बोलते हैं, यू ई का साउंड नहीं आता है, टंग, TONG, टंग, यू ई इज साइलेंट। वैसे ही फटीग, फटीग में भी यू इज साइलेंट। फिर उसके बाद क्या है, चॉक, एल इज साइलेंट, टॉक, फॉक, फोक, सॉरी, इन सब में एल इज साइलेंट। देन अगेन विसल, टी इज साइलेंट, नेसल, टी इज साइलेंट, बसल, टी इज साइलेंट. So these are few of the words that that is this, with this we complete the dictionary work also, the vocabulary also. So I hope there is nothing left in the chapter that we have to discuss, and I hope you understood the story and you also understood the theme of the story, that we must not waste our time in just idling away. We must utilize our time very properly. और बस with this I end my video. तब we will meet in the next class. तब तक के लिए bye bye, take care and be good.